Hello students, now we can start first chapter, the first 1.2 topic. The topic concerned is contest of the present book of microeconomics. We are going to start from this topic. In this, what we are studying about macroeconomics is different from the economics word. As you know that there are a country's economy is running in three types. It will be capitalist economy, mixed economy or socialist economy. Here we are going to talk about capitalist economy. What is written over here, see carefully. We must remember that the subject under the study of particular historical concept, and we shall examine the working of economy of capitalist country in the book. What they are telling us that in this paragraph, in this part, we are going to study about the capitalist economy, what is and how they are doing the production activity. Production activities are mainly carried by the capitalist entrepreneur, risk bearer, or you can say a businessman. And a typical capitalist enterprises has one or several entrepreneurs. It can be a joint venture, the partnership of two person or more than two. They may be themselves supply the capital needed to run, और वो लोग मिलकर they are supplying capitals to each other to run their business, to run their enterprises. Or they may be borrow the capital to carry out the, maybe they can take the capital from the bank or many financial institutions. And they also need raw material, natural resources. यदि एक एंटरप्रेन्योर को अपना प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल उसका एक नीड है प्रोडक्शन को करने के लिए. दे हैव टू बाय दैट रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट एंड दे नीड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर. यदि रॉ मटेरियल लेंगे तो उसका अमाउंट पे करेंगे. नाउ फॉर द प्रोडक्शन यूनिट, टू रन द प्रोडक्शन यूनिट, दे नीड लेबर. और लेबर भी यदि रन लेते हैं, अफोर्ड करते हैं, तो दे हैव टू पे समथिंग. तो लैंड को क्या दे रहे हैं? दे आर पेइंग रेंट टू द लैंड, एंड फॉर द लेबर दे आर पेइंग वेजेस, एंड फॉर द part of revenue or part paid out of the rent for the service rendered by the land, part of paid to the capital interest. और यदि हमने capital लिया है तो उसका interest pay कर रहे होंगे. तो four things are there to do a production. One is land, labor, capital, and the fourth one is enterprises. Yani entrepreneur, we need the entrepreneur. And why they are doing this type of production? To gain profits. Profits are often used by the producer in the next period to buy a new machinery. Natural सी बात है, maximum profitization is the main motive of the entrepreneurs. अब वो उन्हें हेल्प करता है नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट को रन करने के लिए. दीज एक्सपेंसेस विच राइजेस प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, इसको हम जो प्रोडक्शन को रन करने के लिए पैसा खर्च किया जाता है, दैट कैपेसिटी और दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आई थिंक दिस मच इज clear to everyone. Now, in short, capitalist economy can be defined as economy in which most of the economic activity are following characteristics, जैसे private ownership of mean of production, मीन्स टेक प्लेस सेलिंग, उसे कितना बेचना है, कितना खरीदना है, कितना रॉ मटेरियल लगाना है, कितना लेबर लगाना है, वेज रेट क्या रखना है, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय द entrepreneur. Now, the last paragraph, we apply the above mentioned three criteria to the countries of the world. जैसे हमने अभी बताया, स्टार्टिंग में बताया कि some are the example of economy running the capitalist economy. Some examples are there. Handful countries of North America, Europe, Asia will qualify as the capitalist economy. Is carried by the peasant families, or wage labor is seldom used. Most of the labor performed by the family members of themselves. Product do be present, farmers expenses significant capital stock over time. Here what they are telling us कि प्रोडक्शन यूनिट में जो कैपिटल रन करता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, वो डेवलप्ड कंट्रीज होता है. और नेचुरल सी बात है, लेबर हमें किस क्लास से मिलता है, हमें वेजेस कहाँ से किन को देना पड़ता है, इसके बारे में एनालिसिस है. द प्रोडक्शन यूनिट विल बी कॉल्ड द फर्म
इन दिस बुक। अब इसमें हम प्रोडक्शन यूनिट कहाँ पर हो रहा है, एक फर्म में हो रहा है, एक इंडस्ट्री में हो रहा है। आफ्टर हायरिंग दिस इनपुट्स we take the task of production. जब we hire the land, we hire the labor, we hire the land, then we start the production unit. In such a both developed और developing country, हम किसी भी कंट्री की बात करें, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री की बात करें या डेवलपिंग की कंट्री की बात करें, हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस चाहिए। अब यदि हम डेवलपिंग की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर चल रहा होगा, और पब्लिक सेक्टर चल रहा होगा तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लैंड, लेबर, कैपिटल का यूज़ चल रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देयर आर अनदर मेजर सेक्टर इकोनॉमी दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड सेक्टर। एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दिमाग में कर लो, एक फ्लो ऑफ चार्ट है, फ्लो ऑफ इकोनॉमी। फ्लो ऑफ इकोनॉमी में यदि हम करते हैं तो हमारा दो सेक्टर में ट्रांजेक्शन होता है। अभी तक हमने प्रोडक्शन यूनिट देखा किससे होती है, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द टू सेक्टर। देयर आर टू सेक्टर्स, लास्ट हम पढ़ रहे हैं टू सेक्टर्स, देयर इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से लेबर जाता है, कहाँ जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। लेबर इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज़ करके प्रोडक्शन तैयार करता है, और जब प्रोडक्शन रेडी हो जाता है तो उसे खरीदता कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर। यानी इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स होता है, फ्लो होता है, मूवमेंट होता है इकोनॉमी का। जब लेबर हाउस होल्ड से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जाता है तो वो उसको उसके एवरेज में क्या देते हैं, दे गिव द लेबर चार्जेस यानी वेजेस, दे गिव द लेबर वेजेस। अब जब प्रोडक्शन यूनिट यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्रोडक्शन जो है सेल होता है हाउस होल्ड सेक्टर को, तो हाउस होल्ड सेक्टर उसके एवज में क्या देता है, दे गिव द करेंसी, दे गिव द कैपिटल टू देम। तो ये फ्लो मूवमेंट होते हैं। द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये तो अभी हमने टू सेक्टर्स में देखा मूवमेंट। हमारे थर्ड सेक्टर भी ओपन कर सकते हैं जिसमें हम अदर कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। और कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री में फ्लो फ्रॉम डोमेस्टिक। हम यदि एक्सपोर्ट करते हैं, सामान बेचते हैं, तो करेंसी हमारी कंट्री में ड्रेन होती है। हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्री से करेंसी ड्रेन होती है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से करेंसीज का मूवमेंट होता है। Now, the economics, macroeconomics with the aggregate economic variable of economy. हम इस पूरी बुक में हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी अप रेस कैसे होती है, डाउन होती है तो रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, तीनों सेक्टर्स की इकोनॉमी जो है उसमें काम कैसे होता है, प्रोडक्शन को कैसे। और कीन्स ने जो अपनी थ्योरी बताई है और 1930s की जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था उससे हम कैसे वर्ल्ड निकल के आया, उसकी स्टडीज उसमें स्टडी की जाती है। नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।